and welcome Sri Durga Shankar Mishra ji for accepting our invitation. And I'm sorry to keep you have waited. The earlier presentations went on a bit more. Welcome to INE, and very happy that you have been able to join us. And let me briefly introduce you. I don't want to take much more time. To the audience who's attending this, Sri Durga Shankar Mishra is currently working as a secretary to the Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs. He joined it in 2017. Mr. Mishra belongs to 1984 batch of Indian Administrative Services from Uttar Pradesh cadre, and he has held various senior assignments in union as well as state governments covering revenue administration, internal security, vigilance, civil aviation, tourism, sports, etc. He is essentially a BTech in electrical engineering from IIT Kanpur, so he is well aware of the technicalities of what we are going to talk about or what we have been talking about. And he did his BTech from IIT Kanpur, and he's also an MBA from International Business from University of Western Sydney, Australia. Postgraduate diploma in public policy from Institute of Social Studies from The Hague, Netherlands. He's also keen interest in promoting good governance and has published various papers on the subjects related to good governance, public administration, and written many articles in journals and books. He has represented union state governments at various national and international fora and participated in many workshops. He's been a visiting faculty in the University of Guelph, Canada. He's fond of trekking, sports, and tourism. So when I read this last sentence, I can understand that he knows what does it mean by roughing out by the trekkers. And I'm sure he's going to address those in terms of the people who have been roughing out because of the want of facilities or want of houses. I'm sure you would be keen to listen to Sri Durga Prasad Mishra. Please, Mishra ji, give your talk. Thank you. थैंक यू पंडित साहब। मैं आप सारे लोगों से हिंदी में बात करूंगा। आई लव स्पीकिंग इन हिंदी, हमारी अपनी मातृभाषा है और सबको समझ में कोई इंटरनेशनल ऑडियंस यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा। आई होप मेरी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही है। यस सर, ठीक आ रही है आपके पास। ओके, धन्यवाद। हमारे मंगू सिंह जी जो मुझे नजर आ रहे हैं, एमडी ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये आए मेरे पास कुछ थोड़े दिनों पहले और उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें ये भी एक एग्जीक्यूटिव है, ही वांटेड मी टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके द्वारा, हाउसिंग इन इंडिया चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसके ऊपर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं। इस विषय पर आपने हमें इसका एक एग्जीक्यूटिव समरी भी भेजा हुआ है। उसे मैं पूरा देख तो नहीं पाया, लेकिन एक कर्सरली उसको मैंने देखा हुआ है। इस विषय पे इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी आदमी की पहली जरूरत हाउसिंग की होती है और हमारे देश में जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जब 2011 का सेंसस हुआ था तो हमारे देश की अर्बन आबादी लगभग 37 करोड़ प्लस थी और अभी जो अनुमान है यूएन के जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स है उसके मुताबिक 2030 तक ये हमारा बढ़कर लगभग 60 करोड़ हो जाएगी। आज की डेट में हमारा 2021 का सेंसस नहीं हुआ, लेकिन अनुमान है कि हमारी आबादी लगभग 46 करोड़ के आसपास है। 2051 तक हमारी आबादी लगभग 88 करोड़ होगी। ये हमारे जो ग्रोथ प्रेडिक्शन है इसके मुताबिक आता है, यानी कि अर्बन एरिया में हमारे रहने वाले रिहायशी लोगों की संख्या रूरल एरिया से बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पीछे 2001 से 2011 के सेंसस को आप देखिए तो उसमें अर्बन एरिया का ग्रोथ रूरल एरिया से कहीं ज्यादा था। अब जब लोग देहात से शहर में आएंगे या शहर के लोग और उनका जो शहर का जब ग्रोथ होगा तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हाउसिंग के बारे में 2011-12 में द देन प्लानिंग कमीशन में एक
एक एक्सपर्ट कमेटी को बैठाया गया कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितना हमारा जो है एडिक्वेसी, कितनी इनएडिक्वेसी, कितना हम शॉर्टेज है। उस कमेटी ने रेकमेंड किया, 2011 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें रेकमेंड किया कि लगभग 1.87 करोड़ मकान की कमी है पूरे देश में। और उस 1.87 करोड़ के मकान के जो अनुमान में उन्होंने निकाला कि लगभग 96% ऑफ दैट, 54% ओनली फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड 42% ऑफ दैट फॉर द लोअर इनकम ग्रुप। यानी 96% रिक्वायरमेंट हमारा ऐसे लोगों का जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम की। बाकी 4% में MIG और हायर इनकम ग्रुप और बाकी सारे के सारे लोग आते हैं। एक इसको लेकर के JNNURM, आपको मालूम होगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये कार्यक्रम चला था 2005-6 से लेकर के 2012-13 तक चला था। उसे बाद में उसको 2014 तक एक्सटेंड किया गया था, जब तक यूपीए गवर्नमेंट थी। उस पूरे 10 साल या 12 साल में 2004 से लेकर 2014 तक 13.5 लाख मकान सैंक्शन किए गए थे। और 13.5 लाख के जो पूरे हुए थे, केवल 8.5 लाख मकान पूरे हुए थे। 5 लाख मकान पूरे ही नहीं हुए, सैंक्शन तो हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। और 8.5 लाख मकान में भी बहुत सारे मकान खाली रह गए, पूरे नहीं हुए। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी 2014 में, तो उनका विजन था कि हम लोग हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक को मकान देंगे। और हर एक को मकान देना एक इतना बड़ा चुनौती था हमारे पूरे देश के लिए। जब इसके लिए पूरे देश का एक प्रारंभिक अनुमान मांगा गया तो लगभग 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। ये मैं बात कर रहा हूं 2014-15 की बात कर रहा हूं। और बाद में जब सारे राज्यों से उसका डिटेल लिया गया, सारे के सारे उनके जो है एस्टिमेशन लिया गया कि कितनी वास्तविकता है, तो लगभग 1.12 करोड़ 1.12 करोड़ मकान की शॉर्टेज थी। आप सोच सकते हैं कि जहां पे हमारे देश में 12 सालों में केवल 8.5 लाख मकान बने हो, जिसमें सारे मकान पे कब्जा भी नहीं हुआ, सारे मकान में लोग रह नहीं रहे, खाली रह रहा हो। अब ऐसी स्थिति में 1.12 करोड़ मकान, और ये चुनौती थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया कि हम लोगों को जब देश की आजादी की 75वीं जयंती मनाएंगे 2022 में, तो हर एक के पास अपना मकान होगा। बहुत बड़ी चुनौती थी। और ऐसा दुनिया में कहीं भी किसी देश ने, किसी भी शहर ने कभी नहीं किया, इस रफ्तार का कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। अब इस चुनौती से कैसे पूरा करें, इस चुनौती के लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल का प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक योजना बनाएगी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया। और मुझे खुशी हो रही है आपको बताने में, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 1.14 करोड़ मकान हम सैंक्शन कर चुके हैं। यानी जो हमारी आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा मकान हम सैंक्शन कर चुके, क्योंकि आबादी भी बीच में बढ़ी। और उस 1.14 करोड़ मकान के अंदर हमने 90 लाख मकान हमने ग्राउंड कर दिया कंस्ट्रक्शन के लिए। उस 90 लाख मकान में से लगभग 53 लाख मकान, 53 लाख मकान हम पूरा करके आज उन मकानों में लोग रह रहे हैं, उन्हें खुशियां मिल रही हैं। और एक बात ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इन मकानों की खासियत, जब JNNURM में हम मकान बना रहे थे तो हम दीवालों के मकान बना रहे थे। आप मकान की दीवालों के मकान बना देते थे तो मकान पूरा मान लेते थे। जब हम 53 लाख मकान की बात कर रहे हैं तो ये मकान वो है जिसमें हर मकान में शौचालय है, हर मकान में पीने का पानी है, हर मकान में बिजली का कनेक्शन है, हर मकान में गैस का कनेक्शन, या तो गैस का चूल्हा है या गैस का कनेक्शन है। ये मकान, क्योंकि मैं पूरे देश भर में भ्रमण करता रहता हूँ, पूरे देश के कोने कोने में, हर कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे मैं नहीं जाता हूँ और अपनी टीम को नहीं भेजता हूँ। जहां आप जाएं तो वहां पे लोगों की खुशियां, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, क्योंकि हर आदमी की एक आवश्यकता होती है कि हमारा मकान एक होना चाहिए। ये मकान वैसे हैं जो उनकी आकांक्षाओं और उनकी ड्रीम्स को, उनकी जो अपेक्षा है उनको पूरा करने के लिए, उस परिवार को मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए ये पूरी के पूरे मकान बने हुए। अब ये कैसे हुआ, इतना बड़ा जादू कैसे हुआ कि हमने लगभग 53 लाख मकान पूरे कर दिए, 90 लाख मकान हमने ग्राउंड कर दिए और बाकी भी मकान बहुत जल्दी ग्राउंड कर देंगे। ये कैसे हुआ? अभी मैं सुन रहा था, अभी डॉक्टर राघवन साहब जो मेरे पहले बोल रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये हुआ क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर
पूरा का पूरा इस जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो स्ट्रक्चर है उसको इस प्रकार से प्लान किया गया कि जिससे ये कर सके। जो सबसे बड़ा, मैं उसके कुछ एक ऐसे मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार, क्योंकि ये मकान बनाना न केवल लोगों की आवश्यकता बल्कि ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ हमारे देश में, बहुत असर कम हुआ, उसका जो खास कारण था कि ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हमारे देश में लिए गए, जिसमें हाउसिंग फॉर ऑल भी एक प्रोग्राम था, मणिकता अकेला प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए हमारे मंत्रालय के द्वारा। मंगू सिंह जी बैठे हुए, इतने सारे मेट्रो का काम जो हमने, मात्र 240 किलोमीटर मेट्रो हमारी चलती थी 5 शहरों में 2014 में, आज हम 740 किलोमीटर मेट्रो चलाते हैं 18 शहरों में। और यही नहीं, 1060 किलोमीटर मेट्रो के ऊपर काम चल रहा है 27 शहरों में। अगर मैं अकेले अपने मंत्रालय की बात करूंगा तो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहे हैं कि जिसको लेकर के पूरी अर्थव्यवस्था में जो एक हलचल मची, उस हलचल को हमने, उस तमाम सारी हलचल को हम झेल गए और आज फिर से हमारी अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर आ चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बहुत बड़ा योगदान है। आपको मैं बता दूं, जस्ट एक जानकारी के लिए, इससे लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। एक अनुमान हमने इसको कराया, लगभग 2 करोड़ लोगों को मकान मिला है, लोगों को रोजगार मिला है। इससे लगभग 4 करोड़ टन सीमेंट की खपत हुई है। जो मकान हमारे बने, 4 करोड़ टन सीमेंट की खपत हुई है। इसमें लगभग 90 लाख टन स्टील की खपत हुई है। अगर 90 लाख टन स्टील है तो और आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी और अर्थव्यवस्था में इतनी सारे एक मकान आप बनाते हैं, लगभग 270 इंडस्ट्री को आप उसके साथ जोड़ देते हैं, किस्म किस्म की इंडस्ट्री को जोड़ देते हैं, इतनी सारी अर्थव्यवस्था में उसमें परिवर्तन होता है। ये कैसे हुआ और कैसे हो रहा है? मुझे पूरा विश्वास इस बात का, कॉन्फिडेंस है कि हम ये सारे मकान पूरा करके लोगों को देंगे और आगे क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात किया गया कि इसको एक, इट इज नॉट ए सिंगल प्रोजेक्ट बट इट्स लाइक इट्स ए बुके ऑफ स्कीम्स। पहली स्कीम की जिसका जहां पे मकान है और मकान उसका कम है, वहीं पे उसको मकान बनाने का मौका दिया जाए, उसको असिस्टेंस देते हैं। या मकान उसका टूटा फूटा अच्छे हालत में नहीं है, उसको वहीं पे मकान, जिसको कहते हैं बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें भारत सरकार 1.5 लाख रुपए की मनी देती है। बहुत सारी राज्य सरकारें, कोई 50,000 देती है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, राज्य सरकारें भी देती है, क्योंकि उनको भी हाउसिंग करना मेन जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। कहीं पे अर्बन लोकल बॉडीज भी देती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बेनिफिशियरी होता, अपने सारी की सारी आमदनी जहां से सोर्स मिलता है, उसका ड्रीम होता है, उसको पूरा करता है। इसको कहते हैं बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। और उसके बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के तहत सबसे ज्यादा जो मकान बने, वो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के तहत लगभग, जो हमने सैंक्शन किया, लगभग 69 लाख मकान बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है। जहां पे है वहीं पे अपना मकान बना रहा है, जिसमें करीब काफी सारे मकान हमारे करीब 25 लाख पूरे हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है, करीब 53 लाख पे काम चल रहा है। जो दूसरा हमारा जो स्कीम है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसका मतलब हुआ कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, आपके जैसे भी तमाम सारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनके पास अगर जमीन है तो वो वहां पे मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। या पब्लिक सेक्टर में जो तमाम सारी जो हमारे हाउसिंग बोर्ड होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वो वहां पे अपने मकान बना सकते हैं और उस मकान को वो लोगों को दे सकते हैं। ये मकान देने के लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार उन्हें देती है, हर मकान के लिए देती है। बाकी राज्य सरकारें भी, मैंने कहा, 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज, वो इसको मदद करते हैं और इससे वो मकान उनको मिल जाता है। तीसरा है इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट जो है, जहां पे स्लम्स ऑलरेडी है, वहां पे लैंड को मोनेटाइज करके आप वहां पे बनाते हैं कि जिससे कि वहां पे दूसरे रिहायशी बने, हायर कैटेगरी के बने, कॉमर्शियल बने, इंस्टीट्यूशन बने, और उससे क्रॉस सब्सिडाइज करके वहां पे स्लम्स में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और ये भी अच्छे खासे लगभग 7 लाख मकान में सैंक्शन किए, इसमें करीब 4-1 लाख मकान तो पूरे हो चुके। इसमें ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में से, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, ऐसे हैदराबाद में, ऐसे बड़े बड़े शहरों के लिए इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। और चौथा जो कंप्लीट फ्लेक्सिबल था वो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो सीधे बैंकों के माध्यम से, इसमें नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से, जो हमारा नोडल बैंक है, हडको जो हमारे मंत्रालय के अंतर्गत है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके माध्यम से तमाम सारे बैंकों को, ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो सीधे बैंक को अप्लाई करते हैं। बाद में इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी इसको जोड़ दिया। मिडिल इनकम ग्रुप में लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में करीब 11.2 लाख लोगों को फायदा पहुंचा।
यानी लगभग 17.5 लाख लोगों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम से फायदा पहुंचा। और आप सोच सकते हैं, मैं इसको एक अनुमान के लिए आपको बताना चाहता हूं, 2004 से लेके 14 के बीच में, यानी 10 साल 11 साल के बीच में, उस पीरियड में लगभग 18,000 राजीव ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों ने लोन दिया था, केवल 18,000। आज हम लगभग 17 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लोन दे चुके हैं, केवल इसलिए कि चीजें इतनी आसान है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान है। एक हमारा जो हमने क्लैप, जो एक ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम बना, एक एक बेनिफिशियरी अपने जो लोन को वो ट्रैक कर सकता है। आज वो बैंक में पहुंचा है, उसका सब्सिडी रिलीज हुआ नहीं रिलीज हुआ, क्या इतनी चीजें आसान है कि जिसकी वजह से आज हम 17 लाख से ज्यादा लोगों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में बेनिफिट हम दे चुके हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा, जो मैंने बताया कि जो बुके ऑफ हमारे स्कीम से दे आर सिंपल, और उसके लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसको फायदा हुआ। दूसरा, एक इसको इट इज नॉट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि मैं खुद अपने राज्य सरकार का, उत्तर प्रदेश कैडर मेरा है, उत्तर प्रदेश का मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट रह चुका हूं। इसी जगह जहां से आज मैं एज ए सेक्रेटरी आपसे बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अपनी स्कीम लेके आता था और यहाँ पे तमाम सारी चीजों का अप्रूवल लेना पड़ता था। अब वो सिस्टम को खत्म कर दिया गया, 2014 के बाद उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। नाउ देयर इज मोर फेथ एंड ट्रस्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स। अल्टीमेटली दे आर द प्राइम मूवर्स, वो उसको चीजों को ड्राइव करते हैं, वो भी अपनी चीजों को इन्वेस्ट करते हैं, वो तमाम सारे रिसोर्सेज को। अब राज्य सरकार को हम ओवरऑल एक जो हमारे ब्रॉड पैरामीटर्स उसके अंदर हम स्कीम को अप्रूव करते हैं और उसका हम फॉलो करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। राज्य सरकारों का साथ इट्स लाइक ए कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वी गिव फुल कोऑपरेशन एंड इस फेडरल व्यवस्था के तहत उनको पूरा उनको सम्मान देते हुए उनको देते हैं कि आप इसको सैंक्शन करें, आप इसको जो आगे इसको फॉलो करें। देयर इज अ रिव्यू मैकेनिज्म, हमारा सारा का सारा रिव्यू ऑटोमेटिकली यूजिंग द हमें सैटेलाइट डाटा को यूज करते हुए, आईटी सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम यूज, एक एक चीज मैं अपने प्लेटफॉर्म, अपने स्क्रीन के ऊपर मैं देख सकता हूँ, दिल्ली में ये हो रहा है तो रामपुर में ये हो रहा है तो हैदराबाद में हो रहा है, एक एक चीज में, एक एक हाउस को मैं देख सकता हूँ। दिस इज ऑल जीआईएस बेस पे, उनको हमने हर एक मकान को उसका जो जीआईएस मैप ले रखा है, उसको जियो टैग कर रखा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों को फेथ, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी दिया राज्य सरकारों को, जैसे कि आपके राघवन साहब बोले थे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी। हमने एक मिनिमम तय किया कि 30 स्क्वायर मीटर का मकान होने, आप 50 बना सकते हैं, 40 बना सकते हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, आप 45 बना सकते हैं, आप जैसा भी बनाना चाहें, लेकिन मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर का आप मकान बना करके दे दें। दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट फेथ एंड ट्रस्ट जो कि पिछले 10 सालों में, पिछले 6-7 साल के भीतर हुआ, दैट हैज मेड द बिग डिफरेंस। जो तीसरी चीज जो इसको बहुत ज्यादा इसको फर्क आई, वो फर्क आई हमारा रेरा के नाते, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो बना 2016 में और 2017 सुप्रीम, जो हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद उसके सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया। उसके बाद हर एक प्रोजेक्ट को रेरा के अंतर्गत, जो बड़े बड़े हमारे जो प्रोजेक्ट है जिसको हमने अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप कर रहे हैं, या हम इसको इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे सारे प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। और रेरा में देयर इज ए कॉन्फिडेंस ऑफ द होम बायर्स, सरकारी स्कीम को भी रेरा के बाद नहीं, एवरीबडी हैज टू गेट रजिस्टर्ड। जब रजिस्टर करेंगे तो आप जो कमिट करेंगे, जो समय आप कमिट करेंगे, जो प्राइस आप कमिट करेंगे, उसके हिसाब से आपको डिलीवर करना पड़ेगा। देयर इज अकाउंटेबिलिटी, दैट अकाउंटेबिलिटी फैक्टर वाज मिसिंग फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर। उस अकाउंटेबिलिटी को, उस ट्रांसपेरेंसी को लाया गया थ्रू द रेरा, एंड दैट हैज मेड अ बिग डिफरेंस। जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के लिए इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी, एक तो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमने फाइनेंसिंग की व्यवस्था की, जो कि इसकी राज्य सरकारों को कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, आप 1 लाख देना चाहे, 5 लाख देना चाहे, 4 लाख देना चाहे, डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज, वॉट एवर यू कैन गिव। देयर इज नो मैंडेट बाय द, पहले स्कीम बनती थी कि हम इतना देंगे, आप भी इतना देंगे, नहीं, हम इतना देंगे, आप जो देना चाहे आप दे सकते हैं। एंड सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर गिविंग एज मच एज 4 लाख रुपीज पर हाउस। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा हुआ कि बहुत सारी तेजी से सारे काम हुए। वो रिसोर्सेज को उन्होंने इसको तरीका निकाला कि कैसे हम चीजों को क्रॉस सब्सिडाइज करें। बहुत सारे राज्यों ने क्रॉस सब्सिडाइज करने की कोशिश की, बहुत सारे राज्यों ने लोगों को मकान का अधिकार देने के लिए वहां के कैबिनेट ने अप्रूव किया, जिसको हमने सब जगह फॉलो किया, कि वहां के कैबिनेट अप्रूव किया कि जो जहां रह रहा है उसके मकान का उसी को अधिकार दे दिया जाए। ऐसा चीज रूरल एरिया में होता था, एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते तमाम सारे राज्यों में, तमाम सारे शहरों में लोगों को जमीन का अधिकार दिया गया। दैट मेड ए बिग डिफरेंस। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो है फिस्कल, जो हमारे टैक्सेशन के बारे में, टैक्स के बारे में अगर आप उठा करके देखें, 2014 से लेकर के 2021 तक का बजट जो आया, हर एक बजट में
ऐसी तमाम सारी चीजें अनाउंस की गई माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, जो कि सीधे सीधे रियल एस्टेट सेक्टर को या हमारे हाउसिंग स्कीम को इम्पैक्ट करती है। चाहे वो हमारी जीएसटी टैक्स के बारे में हो, इनकम टैक्स के बारे में हो, इंडिविजुअल को देने के बारे में हो, कॉर्पोरेट को देने के बारे में हो, रियल एस्टेट के डेवलपर को देने, ऐसे तमाम सारी, आई डोंट हैव टाइम टू गिव ऑल दोस डिटेल्स, बट एक पूरा का पूरा दे दो होल लॉट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन द फिस्कल सिस्टम की चीजों को आसान बनाया गया, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसमें आए, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, और उस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होने से आपको फायदा हो। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI 100% इसमें अलाउ कर दिया गया। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डिक्लेयर किया गया। हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, नॉट द हाउसिंग बट अफोर्डेबल हाउसिंग में डिक्लेयर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट बैंक के माध्यम से उनको जो लोन मिलने में सहूलियत मिले, उन्हें उनमें काफी आसानी हो। तो ये भी दिस वाज ऑल काइंड्स ऑफ दिस फिस्कल मेजर्स वर टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि लोगों के इसके हाउसिंग स्कीम जो इसको हम लोग समय से पूरा कर सके। द नेक्स्ट थिंग वाज द रेगुलेटरी मेजर। आप याद करिए कि पहले हमें नक्शे पास करने के, हमारे और आपके जो इतने ताकतवर लोग हैं, हमें नक्शे पास कराने में 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे। आपका यहां से सैंक्शन, वहां सैंक्शन, एक जगह से दूसरी जगह फाइल को लेकर के आप घूमते रहते थे। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब मैं तो इस मंत्रालय में 2014 से हूँ, 7.5 साल से ऊपर मैं पूरा कर चुका इस मंत्रालय में, एज ए 3 years एज ए एडिशनल सेक्रेटरी एंड मोर देन 4.5 years एज ए सेक्रेटरी टू दिस मिनिस्ट्री। रादर 2 मिनिस्ट्री को जोड़कर एक मिनिस्ट्री बनाया गया। यहाँ जो ईज ऑफ डूइंग कंस्ट्रक्शन परमिट में वर्ल्ड बैंक ने जब 2016 की हमारी रैंकिंग थी, 15 की रैंकिंग थी, 186 आउट ऑफ 190। आप समझ सकते हैं, बॉटम से हम 5वें हुआ करते थे, और जो पिछले साल की 2020 की रैंकिंग आई थी, हम 27वें स्थान पे थे। यानी वी हैव जंप्ड 159 प्लेसेस इन जस्ट 4-5 years। सो मच अमेजिंग। एंड वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग जो होती है वो इतनी फेयर रैंकिंग होती है, उसमें तमाम सारे एक वो उनके आर्किटेक्ट से उनके फीडबैक लेकर के, हमारे नहीं बल्कि बहुत सारे फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर वो रैंकिंग करते हैं, दुनिया भर की रैंकिंग करते हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आदेश थे कि हम इसे सारे शहरों में करें, आज लगभग 2500 शहरों में, टोटल हमारे देश में लगभग 4800 शहर, 2500 शहरों में आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट यानी आपका ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लागू है। बहुत आसानी से आपको किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा पेमेंट से लेके नक्शा सबमिट करने से लेके नक्शा अप्रूवल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इससे अब सारा एक दूसरे को सीमलेसली कनेक्टेड होता है। सो दिस काइंड ऑफ a regulatory regime which was bringing ease, and now effort of my ministries, ये सारा राज्य सरकार का काम होता है, effort of our ministries, इसको हम परस्यू करके मार्च तक 100% सारे शहरों को इसको ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम को लेके जाए। एंड द लास्ट थिंग वाज द टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसको टेक्नोलॉजी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द होल प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ पे शैलेश जी है, यहाँ पे हमारे ईडी ऑफ BMTPC, जो हमारे मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। जो हमारा ये टेक्नोलॉजी का था, टेक्नोलॉजी सब कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना। उस टेक्नोलॉजी सब कंपोनेंट के तहत तमाम सारे हमारे देश की जो डेवलप होने वाली टेक्नोलॉजी थी, उन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया। और जब भी पीछे हमने एक इंडियन हाउसिंग टेक्नोलॉजी मेला एक लगाया था, इसमें 75 देश की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, इसका पूरा का पूरा वीडियो हमारे वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं कितनी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे लोगों ने निकाला है, जो कि रिसोर्स एफिशिएंट है, जो कि तेजी से काम कर सकती है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हम लोग क्यों नहीं दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में ले आए, एंड वी हैव लिवरेज्ड द प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज मार्च 2019 में किया। उसमें दुनिया के 54 टॉप टेक्नोलॉजी जो कि अलग अलग किस्म से उनकी अलग अलग उनकी खासियत थी, वो सारी टेक्नोलॉजी ने भाग दिया। देश में एक ऐसा माहौल बना, और उसमें से थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोसेस 6 टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, और 6 जगह पे इस साल के 1 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में, जो कि सदर्न इंडिया का है, राजकोट में जो वेस्टर्न इंडिया का है, इंदौर जो कि सेंट्रल इंडिया है, लखनऊ जो कि नॉर्दर्न इंडिया है, रांची जो कि ईस्टर्न इंडिया है, और अगरतला जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन 6 जगहों पे 6 अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी, मेरे पास वक्त नहीं है कि भी बताऊं एक के बारे में, आप जाकर के खुद हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं। जो रांची में जो टेक्नोलॉजी बन रही है, बच्चे तो लेगो खेलते हैं, पूरा बना बनाया मकान वहां पे एक के ऊपर दूसरा मकान रखते चले आते, इस रफ्तार के साथ काम होता है। क्लाइमेट को उससे नुकसान न होने पाए, इन्वायरमेंट को नुकसान होने पाए,
रिसोर्स बेस्ट तरीके से यूज हो सके और लोगों को भी जैसे मैं चेन्नई का देख रहा था, वहां मुझे बता रहे थे कि उसकी लाइफ 100 साल तो मिनिमम है। एक फैक्ट्री जैसे वहां पे पूरा पूरा मकान बनना है, मोर देन 1000 हाउसेस, वो बनकर के 8-10 महीने बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी की चीज को भी इसको एडजस्ट किया गया। ये जो तमाम सारे जो मेजर्स दिए गए भारत सरकार द्वारा, दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू टेक दैट पेस कि हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक नई चीज समस्या आई, और वो समस्या हमें कोविड-19 का जो पहला दौर आया, जब तमाम सारे लोग शहरों को छोड़ करके अपने देहात में, अपने गांव को जाने लगे या छोटे शहरों में जाने लगे, एक बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ा कर दिया कि जो हमारी तमाम सारी इंडस्ट्री में काम कौन करेगा, जो हमारे शहरों के तमाम सारे आगे कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए काम कौन करेगा। एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो उसमें देश में पहले बार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, एक सब स्कीम हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की लागू की गई, और ये लागू की गई जुलाई 2021 में। मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि ऑलरेडी लगभग 4500 लोग अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत रह रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि मोर देन 80,000 हमने मकान सैंक्शन किए, जो कि पब्लिक या प्राइवेट बॉडीज अपने अपने जमीन के ऊपर करने वाले हैं। और बहुत सारे जो है लोगों को मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2-3 लाख हम बहुत जल्दी करेंगे, जिसके द्वारा लोगों को जहां पे काम कर रहे हैं, अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं बाहर से, उनको जहां उनका कॉलेज है, जहां उनका इंस्टीट्यूशन है, उसके पास में रहने की जगह मिले। दे आर नॉट फोर्स्ड टू लिव इन द स्लम एरिया और इन फॉर्मल सेटलमेंट्स और इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द सिटी, जिससे कि पता चला देर तक उनको आने जाने में उनको इतना समय गुजरे और शहर में भी इतना पोल्यूशन हो, शहर में इतना कंजेशन हो। ये एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंड आई इनवाइट, आई मीन काइंडली सी आवर वेबसाइट एंड यू विल फाइंड उसमें ऐसे सारे इंसेंटिव है जिससे कि इंडस्ट्री को बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए। अभी हाल में मैं सीरी सिटी गया था, वहां पे उन्होंने कहा कि हम 3000 मकान बनाना चाहते हैं ऐसे अपने लोगों के लिए जो कि मदद करते हैं। तो दिस इज अनदर एरिया जो कि बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। और एक और नई चीज, भारत सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट, जो टेनेंसी लॉ हमारे थे वो 60s और 70s एंड 50s के बने हुए हैं, ऐसे लॉ थे कि जो कि आप मकान जब आप किराए पे दे दीजिए तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको मकान वापस मिलेगा। नतीजन 2011 के सेंसस में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली थे। आई एम कोटिंग द सेंसस फिगर, लेकिन वो किराए पे नहीं दिए गए। अगर उन मकानों को, खाली मकान को किराए पे दे दिया जाए तो कितनी सारी हाउसिंग की समस्या दूर हो सकती है। अब भारत सरकार ने एक मॉडल टेनेंसी लॉ बनाया जिसमें जो टेनेंट है और जो मकान मालिक, लैंडलॉर्ड है, दोनों के रिलेशनशिप, उनके आपस में रिलेशनशिप है, जिसके माध्यम से उनका जो डिस्प्यूट जो है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बहुत ही सिंपल सिस्टम है। लोगों में कॉन्फिडेंस बनेगा, एक नया एक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में होगा। दैट्स गोइंग टू बी अनदर गेम चेंजर। ऑलरेडी आसाम ने हमारे लॉ के आधार पर बना लिया। तमाम सारे राज्यों में विंटर सेशन में ये कानून आने वाला है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में टेनेंसी लॉ बहुत आसान होंगे, जिसकी वजह से लोगों को रिहायशी के लिए किराए पे मकान मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तमाम किस्म के लोग, या बच्चों को या लेडीज को, या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेडीज जो कामदार जो काम करने वाली लेडीज हैं, जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं जिनको काम करना, अलग अलग लोगों के लिए किराए पे मकान लेना ज्यादा आसान होगा, जिससे कि वो स्लम्स में नहीं रहे। तो ऐसे तमाम सारे मेजर्स हैं जिसके आधार पर हाउसिंग फॉर ऑल, जो हमारा एक हाउसिंग का जो सपना है, जो प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि हर कोई को हम हाउसिंग अच्छा मकान दें, जिसके माध्यम से वो अपनी जो जितनी उनकी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को लोग पूरा कर सकें। और वो हमारी अर्थव्यवस्था जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके बारे में एक लक्ष्य रखा गया कि हम इसको 2030 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और उसके बाद हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे। वो तभी संभव होगा जब हर कोई अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक अर्थव्यवस्था को योगदान दे सके। अगर वो केवल अपनी रिहायशी के लिए ही वो जूझता रहेगा तो वो अर्थव्यवस्था को उतना ज्यादा नहीं दे सकता है, योगदान दे सकता है। इसलिए ये पूरा का पूरा मैं समझता हूँ हाउसिंग फॉर ऑल, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, रेगुलेशन हो, फाइनेंस हो, फिजिकल हो, चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज इट्स ए टीम इंडिया वर्क। एवरीबडी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, center, state or the urban local bodies, all of them working together to make sure that everybody gets a house by, I mean, when we enter into the 75th year, that is 2022, अगर हर एक का मकान, और मुझे पूरा विश्वास है कि मकान जो हमने सैंक्शन किया वो बहुत जल्दी जल्दी पूरे होंगे। So I close here and wish you all the very best for this deliberation on the work which we have done, that is housing in India, challenges and way forward. Thank you. Jai Hind. Thank you, Mishra ji.
फॉर योर पैशनेट अपील। आपने जिस तरीके से सब बताया और जो जो कर सकते हैं करना चाहिए ये बताया, उससे काफी सब लोगों को स्फूर्ति मिली है, काफी कुछ उत्साह बढ़ा है और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने टाइम निकाल कर हम सबको एड्रेस किया, हम सबको मार्गदर्शन दी और आप इसी तरीके से जुड़े रहिए आईएनई के साथ और हम लोग की जो कुछ आपको मदद मिलेगी आप सिर्फ कहना चाहिए और कहते रहिए, आपको ये मदद आईएनई से हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू। I will hand over the mic to Professor Prem Krishna.